Bismillahirrahmanirrahim. Is my screen visible to you? Yes, sir. Kindly can somebody respond? Is my screen visible to you? Yes, sir. Yes, Raj. Okay, that's great. So we start our today's lecture. Bismillahirrahmanirrahim. So this is the week number 5 in which we are in at the moment, and this is our lecture, which is about the kinematics, and precisely this is about the forward kinematics of robotic manipulator. Um, so let me just see if. Um, all right, this was, I think. All right, Ji. So this is about forward kinematics of the robotic manipulator, lecture number 5, and this is we are in week number 5. Um, so just a repetition that how do we define kinematics? Kinematics is defined as the science of motion that treats the subject without regard to the forces that cause it. So we have already started this and we have talked about it a little as a definition. So it's just a repetition. And during the study of kinematics of manipulator, so we will refer to all geometrical and time-based properties of the motion. And you know, you already know this, that we actually deal with the, in the kinematics, we deal with the position, in fact. We deal with the position, and then with the position we go into velocity. That is the actually first derivative. This is the first derivative, and then we go into acceleration. That is the second derivative. What could be a third derivative, or what could be a derivative of acceleration? Any idea? Jerk. Oh yes, that's great. So jerk is the uh, derivative of acceleration. Very good. So this is actually the third derivative. So in fact, we would be dealing with these until here. We would not be dealing with the jerk here in the manipulator. So we will be dealing with position, its velocity, and its acceleration. So it is the kinematics which we will be studying. So let's move forward and talk about a manipulator. If you look at this robotic arm, so this has five joints. See, five motions. So this is motion number 1. This is the joint number 1. Then we have a joint number 2. This is joint number 3. You can see here joint number 3, joint number 4, and joint number 5. So if we add another joint here, something like this here, if we add a joint here, so this will become a 6 joint manipulator. Okay, so ये जो मैंने आपको थोड़ी इसकी दिखाई हैं, the arrows which I've shown, the arrows, actually these are the rotation of the joints. So we would be talking about the rotation of the joints in a while, that how do we define the axis along which the joints rotate, or maybe translate. We will talk about it in a little while. So this is how a robotic manipulator would look like, and it has certain number of joints, and this can be termed as a robotic manipulator. So if you can see in the slide that I have put a blue coordinate system. I have put a blue coordinate system onto the base frame, or the frame number 1 of this manipulator, or the
joint number 1 on this manipulator, and then I have put a green frame or a coordinate system onto the second joint. So if we term these joints as A and B, so we can actually find out the transformation of frame B with respect to A, or as frame A with respect to B. So we have been actually already doing this. So this is just a reinforcement for you, in which I am going to talk a little about taking the inverse of a 4 by 4 matrix. We have already talked about it. Rotation matrix and the inverse of the rotation matrix. We have talked about rotation of the transformation matrix also. But today I'm just going to show you a technique to calculate the inverse of a transformation matrix. So we know this that for, yes, okay. So we have here is frame A relative to frame B. If I want to write down this is B relative to A, so this is actually B relative to A. So this is B relative to A. So this is a 4 by 4 matrix, and we know that this part is 3 by 3, which is taken by the rotation matrix, and this is 3 by 1, which is actually the position of B origin with respect to A, and this becomes our transformation matrix B respect to and B relative to A, or B with respect to A, and this is a 4 by 4 matrix. So let us just know this, that what do we mean by this? B relative to A, and this is A relative to B. We already know this, and this can be termed as that if I want to equate these two. So if I want to know uh, A relative to B, and I am given to me as B relative to A is given to me, and I want to go into A relative to B, which is this part. So what I need to do is that I need to take the transpose of the known matrix which is given to me, which is B relative to A. So this is going to give me a transformation matrix which will give me A relative to B. So this is all we know already. This is just a reinforcement or a repetition. So how to calculate the transformation or transpose, the inverse of a 4 by 4 matrix. So this is one technique. I'm giving you one technique here which can be useful for you to while solving your problems of transformation matrices. So this is actually one technique which is being used in the literature. So just look at this as if I want to take a transpose of B relative to A. So what I need to do is that just look at this, that in the rotation matrix, I am transposing this row into this column like this, and similarly second row into second column, and third row into third column. So this is what I'm taking a transpose here. Okay, so here this is the taking a transpose of the rotation matrix, and then these are the fourth column. These are the fourth column which we are going to obtain with the help of the value given to us as px, py, and pz, and the multiplying and adding them with a1, a2, a3, and similarly b1, b2, b3. So this is one of the methods of calculating the transpose of a 4 by 4 matrix. This is only true for 4 by 4 matrix. So please keep this thing in mind, that this technique is true. This this technique, this technique is true
A4 4 by 4 matrix. Okay, so please keep this thing in mind. This is only for 4 by 4 matrix, and we will just practice this a little in the next slide. So let's see if we'll do it by an example. So let's see if a camera is attached to a gripper and a robotic arm. This is the example given to us, that a camera is attached to a gripper in a robotic arm. The camera can focus on an object to determine its frame relative to camera. So we have a camera which is put in a gripper, and the camera can see an object, and it can determine its frame relative to the camera. So object's frame relative to the camera. So we need to find out the transformation matrix for the object relative to robot. So this is the requirement, that we want to find out a matrix, transformation matrix, which can give us object relative to the robotic arm. So this is the question. And we are given these matrices through which we can see that we know the object with respect to, we know the object with respect to camera, we know the camera with respect to the gripper, and we know arm with respect to the gripper. So let us see this. So this is how it looks like, that we have an arm. So this is an arm, we have this arm, and in the arm we have a camera, or rather we have a gripper at the arm. So this is the gripper which is at the arm, and then we have a camera which is which is held by the arm, by the gripper, and then the camera can take can look at an object, and it can give us the frame relative, the object relative to the camera. So this is what is given to us. So this is actually, if I let me just, okay. So in fact, this is T object to cam. We know this, and this is T object to cam. Then cam object to cam to grip. So this is T cam to gripper, cam to grip. So we know this also, and we know arm to grip. So this is actually T arm to grip. Okay. And what we are interested to know is, we are interested to know this, which is given by us with a dot, and this is T object with respect to so this is what we are interested to know. All right. So if I want to find out the transformation from object to arm, so how can I go like this? So I can go with grip to arm. So I know the grip with respect to arm. Okay, I think I have made this, I have made a mistake here. Let me just correct it. This is actually T grip with respect to arm. So this is grip with respect to arm. So that was a mistake. So I have made a correction here. So I will go from here to from the arm to the gripper. So I know grip with respect to, or I have to know grip with respect to arm, that cam with respect to grip, and then object with respect to cam. So what is important in this kind of transformation is that this should be the same as this, and this should be the same
and this should be the same as this, and then in the diagonals this should be the same and these should also be same. So then it means that we have, शायद मेरी क्लास हो रही है, I'll call you back. Okay, so this is the alright. So this is the transformation matrix which is given to us with the help of these three. These three. Now let's see what do we know, what do we know and what we do not know here as given to us. So object with respect to cam, so this is known to us. Then cam with respect to gripper, okay, this is also known to us. And gripper with respect to arm, in fact we are given arm with respect to gripper. So if I take the inverse of this, T inverse of arm to grip, so actually this is going to give me T grip to arm. Alright, until now, is there any confusion until now? Ji, can somebody respond? यहाँ तक, do you have everything clear in your mind that what transformation we are talking about and what all we are given and what we are not given? Yes. Ji, are you clear? Somebody to please respond. Yes, sir. Okay, so great. So let's move forward, and now this is something which we were not, we did not know. We know this, but we were interested to have the inverse of this so we need to have the inverse, T inverse of arm to gripper. So we know that this is the transformation matrix, which so this is the method of taking inverse of the matrix. So if I take the inverse of this matrix, so this can be given to me by this. So this is arm to grip, and if we take the inverse, so I'm going to get grip to arm, which is the required one. So this is what I have calculated here. I have used this inverse matrix transformation technique, and I have achieved this. So this is the matrix which I get as transformation of gripper with respect to arm. So let's move forward and put this into, put it here into the equation. So just see that we have put the inverse transformation matrix here, and these were the two given known to us, so we have put it here, and then while we multiply these two with these three matrices, so this is the answer which we were interested in. So this was just to give you an idea of calculating inverse of a transformation matrix which is 4 by 4. So this was, we did not do this earlier, so just give you this idea so that while solving your problems of the book, you are able to calculate the transformation inverse of the transformation matrix, which is 4 by 4 transformation matrix. And moreover, we have moved from one place to another, and knowing that these are the transformation matrices which we know, and how can we arrange those into a final equation. So this is what was a reinforcement or a revision for you. So if you are good with this, so we move forward to the forward kinematics, and we are going to talk about some links and joints. So what is a link and a joint? I'll just give you, I'll tell you in a while. So a robot can be considered as a set of rigid bodies which are connected through links and joints. So सबसे पहली बात ये कि rigid body. How do you define a rigid body? You must have studied it earlier in your courses. So how do you define a rigid body? Ji, can somebody please?
दो आंसर पॉइंट में के दरमियान में डिस्टेंस चेंज ना हो, जिसके दो पॉइंट्स दो मतलब दो कोई भी पॉइंट्स के दो दरमियान में. So if we select 2 points on a rigid body, so the distance between these 2 points do not change. So very good. So this is the definition of a rigid body, that if we have 2 points on a, let's see if I make a rigid body here. If I make a rigid body here like this, and I select point 1 and point 2, point 1 and point 2 on this body. So in whatever configuration, or in whatever motion my body goes, so the distance between these 2 points remains constant. Let's see, this is D. So the D would remain constant, and this is how we define a rigid body. So all the links of a robot which are connected to the joints, they are taken as rigid bodies which are connected through links and joints. So if I look at this diagram again, so let me just, and let's see, we had defined that this is one joint. So we had defined this one joint, and we had defined this another joint. So if we take this as joint 1 and this as joint 2 on which the robot is moving, so this is the link. So this is the link, and this distance between these two joints is called link length. So we would be talking about link length in a little while. So the distance between the two joints which are joined together with the help of a link. So it means that on a link we have two joints on one side, on another. If let's see if this is a link, so we will have a joint here and we will have a joint here. ठीक है. सो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जॉइंट मूविंग हो. बेस फ्रेम के ऊपर जो एक तरफ का जॉइंट होता है दैट इज स्टेशनरी, और दूसरे के ऊपर जो उस जॉइंट जो है दैट मूव्स. So if we have a link, if I use this marker as a link, so it will have joints on both sides, on one side and on the other side also. So this is how we define a link, and the distance between the axis actually, we will go into a little more detail, then you will be more clearer, but the axis which are going through this joint and the axis which is going through this joint, so distance between these two axes which are going through the joints, that is called the link length. So we will go into more detail of this. This is just to give you an idea that how does it look like and what type of joints can be there. So there can be screw type joints, there can be spherical joints, revolute joint, and we would be dealing with the revolute, and we will be dealing with the revolute and prismatic joint. So what does the revolute joint do? The revolute joint actually rotates about its axis. So now this is denoted by R while we are dealing with the joints in manipulators. And this is the prismatic joint which can move up and down in either direction. So this is called a prismatic joint, and this is denoted by the letter P. So we would be dealing with these two types of joints in our course. Only. So one more thing which I want to just add here as information, that a general purpose robot should have 6 degrees of freedom. So let me just write these things here. So number one is a general purpose robot will have 6 degrees of freedom. So if we have a robotic arm which has
more degrees of freedom than 6, so this will be called redundant. This will be called redundant. Okay, so a manipulator or a robot which has more than 6 degrees of freedom, so this is going to be called as redundant. And if a manipulator has a fewer degrees of freedom than 6, and then this will be called deficient. ठीक है, so ये कुछ terminologies हैं which you should keep in your mind. And the rule of thumb is, let me just write down the rule of thumb also here. Is this a manipulator? जी जी बोलिए दोबारा. I'm sorry, I could not understand your question. सर ये 6 DF वाली बात से मैनिपुलेटर के लिए. जी ये मैनिपुलेट इनफैक्ट होता क्या है जी, होता ये है कि विद अ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट यू कैन रीच टू एवरी पॉइंट ऑफ योर स्पेस. ठीक है, अच्छा अब होता क्या है, वैसे तो आप देखें पूरी आपकी जो स्पेस है उसमें आपके 3 एक्सेस होते हैं. सो मूवमेंट इन 3 एक्सेस, 3 degrees of freedom, and rotation about all the 3 axes 3 more. So 6 degrees of freedom will give you will provide you a facility to reach in every point of the space. But अपनी limitations होती हैं. हर रोबोट की या हर किसी का साइज बड़ा हो जाएगा, कोई बीच में आपके मोटर आपकी आ जाएगी, जॉइंट आ जाएगा, तो उससे क्या होता है कि you are unable to reach to every space of your to every point of your Cartesian space. Okay, तो उसके लिए क्या होता है कि then you add another degree of freedom. आपको याद होगा या आपने कहीं पढ़ा होगा CNC machines के बारे में कि 3 axis CNC machine, then 5 axis machine, then 7 axis machine भी आपने सुना होगा. So वो ये जो एक्सेस हम बढ़ा रहे होते हैं एक्चुअली दीज आर दी डिग्री ऑफ फ्रीडम्स. और ये जो रिडंडेंसी हम डाल रहे होते हैं ये एक्चुअली एक इंट्रिकेट मूवमेंट या किसी एक ऐसी जगह पे स्पेस में एक ऐसी ओरिएंटेशन बनाने के लिए हम अचीव कर सकते हैं. बट एज अ रूल ऑफ थंब, a general purpose robot with 6 degrees of freedom will reach every point in space. अच्छा, I will give you an example of snake robot. अब लेट्स सी, ये मोबाइल रोबोट होता है, ये जो स्नेक रोबोट है, दिस इज अ मोबाइल रोबोट. सो इट कैन मूव through different passages, through different places. It can move, turn around, and go and move forward or come back. So a snake robot has a larger number of degrees of freedoms as compared to 6. ठीक है, अब जो आपका पॉइंट है, मैंने इसको थोड़ा सा एलैबोरेट इसलिए कर दिया कि हम मोर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की बात को भी ज़हन में रखें. सो अ मैनिपुलेटर विल बी मैक्सिमम ऑफ 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अ जनरल पर्पस रोबोट. अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज ऐड कर रहा हूँ कि दिस इज अ जनरल पर्पस रोबोट. बट अ CNC machine is also known as manipulator. It can have more than 6 axes, just we have talked about, to go into an orientation to make an intricate shape. So hum actually we add redundancy to our robots. I repeat, we add redundancies to our robots to go to a place, to a point inside the space. जी, am I clear with this explanation? Okay, that's great. कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ और बहुत ही प्रिमिटिव चीज होती है, आप कहते हैं कि यार ये क्या हो गया. सर कहीं से वो रिडंडेंसी वाला पॉइंट से किसी रिपीट करें सर. दोबारा जी, रिडंडेंसी वाला. जी सर. ओके, देखें किसी भी एक स्पेस में जो कि हमारी कार्टेशियन स्पेस है, उसमें इफ वी यूज अ मैनिपुलेटर, अ रोबोटिक मैनिपुलेटर, सो 6 degrees ऑफ फ्रीडम, 6 joints are enough which can translate and rotate about each axis. So these are enough.
Yeah, this is called a general purpose robot. But for a specific purpose, if we need to go into an in making an intricate shape or reaching to a space with which we cannot go with with 6 degrees of freedom because of some restriction. So that is actually adding one more degree of freedom, and that robot is called a redundant robot. But that is the requirement. उसकी जो 1 degree of freedom है वो redundancy जरूर है, but for a specific purpose reaching to a particular place may require another degree of freedom. So that is not a then this does not remain a general purpose robot. This becomes a special purpose robot. और इसी तरह अगर किसी की कम है तो वो deficient है. अगर वो if it is deficient, so it means it cannot reach all the places, all the points in the space. Ji, is this clear now? Yes, sir. Okay, so what is the rule of thumb? The rule of thumb is, this is rule of thumb regarding the degree of freedom. So if we have n number of degrees of freedom, so it means that we are going to have n number of joints, and we are going to have n minus 1 number of links. So for a general purpose robot, we have 6 degrees of freedom, we have 6 numbers of joints, and we have 5 number of links. So ये general purpose robot के लिए मैंने एक rule of thumb आपको यहाँ पे बताया. And what we have talked about until now is that in a general purpose robot, in a general purpose manipulator, we would be dealing with two types of joints. One would be the revolute joint, the other would be the prismatic joint. ठीक है जी? Is this good? Yes, sir. Okay, so let's move forward and go a little deep down now into the manipulator. So in fact, we use 6 conventions for fixing frames. So अब देखिए, अभी तक हमने सिर्फ रोबोट के आपको मैंने बता दिया कि ये मूव कर रहा है, यहाँ पे मोशन है, मैंने आपको एक रोटेशन की डायरेक्शन बता दी, कुछ थोड़ा सा बता दिया कि इसके ऊपर लगा हुआ है, मोटर लगी हुई है, ये लिंक है. अब to go into the kinematics, we need to fix or we need to assign frames to the manipulator. और वो हम कैसे करेंगे ये अब आपने जरा गौर से इसको देखना है. एंड प्लीज बेयर विद मी. हो सकता है आप थोड़े से यहाँ पे बोर होना शुरू हो जाएं. द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग बोर्ड, प्लीज डू लेट मी नो. and I need your attention. अगर आप इसके अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे तो दिस विल बिकम इंटरेस्टिंग. अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जहां आप कोई चीज मिस आउट कर रहे हैं, आपने मुझे वहां रोक के मुझसे पूछ लें. अगर आपने वो चीज मिस आउट कर दी और आपको समझ ना आई, तो अगली वाली चीज जो कि उससे रिलेटेड होगी तो फिर आपको वो समझ आनी बंद हो जाएगी. एंड फाइनली आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि यार छोड़ो, ये तो समझ ही नहीं आ रहा. सो ये नहीं करना. So please stay attentive, and wherever you find a problem, please stop me right there and ask me to repeat that. Unless you are clear about that particular stuff, we will not move forward. ठीक है जी? So 6 conventions में देखिए पहली convention क्या है? The first convention is let me just pick up the red color. The first convention is to identify the joint axis. Okay, and then उनको या तो imagine करें या उससे बेहतर क्या है कि we draw a line along its axis of movement. So हम सबसे पहले we identified the joints, और हम ये joint हैं किसके? robotic manipulator के, और हम उसको ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे. So if this is a robotic manipulator which you can see on your screen now, so सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये किस तरह की जॉइंट है. So let's see, ये जो मुझे एक जॉइंट नजर आ रहा है, इसमें ये मूवमेंट अप एंड डाउन है, और ये D1 एक डिस्टेंस है जिसमें ये अप एंड डाउन मूव कर सकता है. So this is actually which kind of joint? Prismatic. ये कौन सा जॉइंट होगा in which this movement is up and down? Sir, prismatic.
This is a prismatic joint. Shabash, very good. So we have a prismatic joint here. Then this is a motor which can rotate by an angle theta 2 along this axis. So this is a revolute joint. Okay. Similarly, another motor or another joint along which can rotate through an angle theta 3. So another revolute joint. So we have one, and this is the gripper, और ये gripper के साथ एक मैंने frame attach किया. So चूंकि यहाँ movement नहीं है तो इसको मैं I'm not taking this as a joint. So this is, we have three joints, one prismatic, one and two revolute joint. So what was the first thing? Identify the joints, and let us put this here as also. Okay, this is the base of our robot. This is the base of our robot. So the robot is fixed at the base. We have one we have one prismatic joint which can move up and down. Then we have a revolutionary joint, a revolute joint which can rotate like this, and then we have another revolute joint which can rotate like this. All right. Now identify कर लें. Let's see. मैं कहता हूँ कि जी इसमें जो motion है, जो ऊपर नीचे की motion है D1 in revolute joint, तो वो मैं कहता हूँ कि this happens along this line. Okay. The revolution is also along this line. Okay, this is also good. And then this rotation is also along this line. तो ये मेरा जो पहला कन्वेंशन है वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जॉइंट एक्सिस मैंने आइडेंटिफाई कर ली है जो इसके साथ जिसके अलोंग मूवमेंट हो रही है. यहां तक ठीक है जी? आर वी क्लियर विद दिस? सर ये इक्वल टू का निशान क्यों है? नहीं, ये पैरेलल है. इक्वल टू का मतलब है ये पैरेलल है, ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है. ओके सर. ओके, ऑलराइट जी. यहां तक क्लियर हो गया? ओके, सो अब नेक्स्ट कम, लेट्स गो टू द सेकंड कन्वेंशन. सेकंड कन्वेंशन क्या थी? असाइन जी एक्सिस. ये जी आई लिखा हुआ है. दिस इज जी आई and I is actually क्या 1 2 3 0 मतलब 0 1 2 3 4. So this is our first joint. So मैं इसके अंदर Z असाइन करता हूं और मैं इसको कहता हूं this is Z1. Okay, then second, this is Z2 and the third is Z3. ठीक है. अच्छा, ये जो मैंने Z2 और Z3 असाइन किए हैं, these are assigned according to the right hand rule. ये अगर आपको राइट, ये यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रही है. सो मैंने अगर θ2 की रोटेशन या θ3 की रोटेशन में अपनी उंगलियों को कर्ल किया, सो द थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. या ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं. सो इसीलिए मैंने Z2 और Z3 आपको यहाँ पे दिखा दिया. सो वी हैव यूज्ड द टू कन्वेंशंस जो कि आपको यहाँ पे इस वक्त नजर आ रहे हैं. ठीक है जी. सो यहाँ तक ठीक हो गया? ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड जी. अब नंबर 3 पे आ जाए. नंबर 3 क्या है जी? सेट द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ द ith एक्सिस. और इस पे क्या पॉइंट है? द पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू जॉइंट एक्सिस. सो वो कैसे होगा? लेट मी जस्ट शो यू कि अगर मैंने दो, अब देखिए जॉइंट एक्सिस मैं बना चुका हूं. वो जो जीज हैं वो मेरे जॉइंट एक्सिस हैं, जो मैंने जी बनाए थे वो जॉइंट एक्सिस. सो अगर वो जॉइंट एक्सिस आपस में ऐसे क्रॉस कर रहे हो तो तब क्या होता है कि जो मेरी मोशन या जो एक्सिस है वो इनके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है.
वो सेट पॉइंट होगा या वो ओरिजिन होगा उस फ्रेम का अगर दोनों आपस में कोइंसाइड करें। इसकी क्या एग्जांपल है मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा क्या है, start of the common perpendicular between the two axes. So if the two axes are parallel, एक एक्सिस ये है, दूसरा एक्सिस ये है, सो इन दोनों के दरमियान और ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो जाएगा। अब ये कैसे है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सो लेट मी जस्ट write down whatever we had done in the previous slide. So ये revolute joint थे, this was my Z1, this was Z2। मैं ये दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई पिछले मिस हो गया हो, आपके जहन से निकल गया हो, तो इसकी साथ साथ एक रेपिटेशन होती जाए। तो ये Z3, ये मैंने आपको पिछली जो डायग्राम थी वो यहाँ पे बना दी। अब इसमें देखें, लेट अस सी। अच्छा ये कैसे है, अब हमने देखें कैसे जाना है। हमने जॉइंट 1 से जॉइंट 2 की तरफ जाना है, फिर जॉइंट 2 से जॉइंट 3 की तरफ जाना है, और फिर जॉइंट 3 से हमने टूल की तरफ जाना है। अच्छा ये टूल की तरफ जाना, और इसका मतलब ये है कि एक्चुअली हमने चूंकि दो जॉइंट्स के साथ एक अपना ओरिजिन फिक्स कर रहे हैं फ्रेम का, तो इसलिए मैं इसको कह रहा हूं कि हमने 1 से 2 की तरफ जाना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम आगे चलते जाएंगे तो आपको और इसके अंदर क्लैरिटी आती जाएगी। सो लेट्स सी। अब देखिए, अगर हम Z1 और Z2 को देखें, Z1 एंड Z2, तो ये दोनों पैरेलल हैं, और इस पे हमारी जो कन्वेंशन है वो 3B, ये वाली कन्वेंशन इसके ऊपर फिट होगी। सॉरी, हमारी ये वाली कन्वेंशन इस पे फिट होगी। ये बोथ Z1 and Z2 are parallel. So let me just fix this Z1 as the axis, और इसको मैं कहता हूं कि दिस इज द ओरिजिन। ये जो मैंने क्रॉस लगाया है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑन Z1। आई रिपीट, हम चूंकि Z1 Z2 दोनों पैरेलल हैं, तो मैं जब Z1 से Z2 की तरफ आऊंगा, तो चूंकि दोनों पैरेलल हैं, तो देयर हैज टू बी अ कॉमन परपेंडिकुलर बिटवीन दीज टू, Z1 एंड Z2। और वो कॉमन परपेंडिकुलर इज एक्चुअली, वो आप देखेंगे कि दिस कॉमन परपेंडिकुलर विल गो फ्रॉम हियर। ये जो मैंने कांटा लगाया हुआ है इस जगह से जाएगा। कहां जाएगा? अलोंग द कॉमन परपेंडिकुलर। किस पे? Z2 पे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस हियर। सो ये कॉमन परपेंडिकुलर है ग्रीन वाला, जो Z1 से Z2 पे जा रहा है। So I am going to assign the frame. I am going to assign the frame at Z1 where I have put a red cross. यहां तक क्लियर है जी? मुझे काइंडली साथ साथ बताते जाएंगे कि ये क्लियर है आपको। Yes, sir. ओके, लेट अस नाउ कम ऑन टू Z2। अच्छा Z2 और Z3, तो Z2 और Z3 भी दोनों पैरेलल हैं, सो देयर हैज टू बी अ कॉमन परपेंडिकुलर। तो मैं इसको भी डिफाइन कर देता हूँ, Z2 को भी मैं सॉलिडिफाई कर देता हूँ नाउ, और मैं कहता हूँ कि ये मेरा Z2 है, और यहाँ पे इस क्रॉस के ऊपर आई एम गोइंग टू हैव द सेट ऑफ ओरिजिन ऑफ द फ्रेम ऑफ एक्सिस नंबर 2। ओके, एंड इसी तरह 2 और 3 के दरमियान भी एक कॉमन परपेंडिकुलर आएगा, विच इज, मैं जिसको जरा ग्रीन से बना देता हूं, और इसको मैं यहां से, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू मूव लाइक, oops,
I'll try to make it okay. ये ठीक है. एंड इसी तरह इफ आई लुक एट Z3, सो Z3 का भी एक मैं सॉलिडिफाई कर देता हूँ लाइन को, और मैं कहता हूँ कि इस क्रॉस के ऊपर जो Z3 मेरा एक्सिस है उसका ओरिजिन ये होगा. ऑलराइट. और इसी तरह अगला ओरिजिन चूंकि मेरा डिफाइंड है, सो आप एक चीज यहां देखिएगा, ये मैंने देखिए ये Z है, इसको मैं Z को इधर एक्सटेंड करता हूं जो Z टूल है ऐसे. अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, इमेजिन करें अपने जरा और देखें कि क्या Z3 और Z2 ये आपस में क्रॉस करेंगे कहीं एक दूसरे को? No, So sir. जब 180 जी, degrees विजुअलाइज करें कि वी हैव Z3 गोइंग अप, we have Z tool going into the slide and they have a distance in between. अब मेरे हाथों को देखिए, my left hand is actually Z3, my right hand is Z tool which is going into the slide. So will they cross each other because they have a distance between them? Will they intersect each other? No, sir. No, they will not. So it means that there is going to be a common perpendicular between these two. So since we will have a common perpendicular, so I can now safely draw this common perpendicular here. Okay, so यहाँ तक आपको ये बात समझ आई कि अब मैंने I have discussed all these three as parallel axes. अब मैं I'm going to give you an example in which I'm going to talk about. Sir, a जी question है. जी Say start of the common perpendicular between the joint axes. तो सर से पहले वाले पॉइंट को आपने joint axis बनाना है जो दरम्यान में common perpendicular होगा. जी. अभी देखिए Z1 के ऊपर मैंने एक सेट किया ओरिजिन विच इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर. ठीक है तो सर. Z1 और Z2 के दरमियान जो कॉमन परपेंडिकुलर है उसका स्टार्ट पॉइंट मैंने Z1 पे लिया और मैंने ठीक. उस जगह पे अपना फ्रेम असाइन कर दिया. ओके इसी सर. तरह Z2 Z3 के दरमियान मैंने स्टार्ट पॉइंट Z2 पे लिया क्रॉस के साथ और यहाँ पे अपना ओरिजिन या अपना फ्रेम जो है वो यहाँ असाइन कर दिया. इसी तरह Z3 और टूल के दरमियान मैंने जो फ्रेम असाइन किया वो Z3 के ऊपर स्टार्ट पॉइंट के ऊपर किया. सर लेकिन अगर Z3 से Z3 को हम कंसिडर ना करें तो सिर्फ Z1 पे हो तब तक ओरिजिन और Z2 नहीं, को Z3 को हमें कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि देखिए वहां जॉइंट है. ओके. Z3 एक जॉइंट को रिलेट कर रहा ओके सर. है. या मैं आपका सवाल नहीं समझा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम सर वैसे क्या था कि unfortunately- दो जॉइंट हो सिर्फ अभी अगर Z3 हो ही ना मतलब सिर्फ हाँ ये बिल्कुल ठीक. वोट ही काट अगर जाए Z3 नहीं होगा तो हम सिर्फ फिर Z2 पे रुक जाएंगे, वो टू जॉइंट्स और होंगे. फिर और सर जॉइंट का ओरिजिन सिर्फ एक Z1 पर ही होगा स्टार्टिंग. दोबारा जरा दोबारा. सर ये ओरिजिन स्टार्ट ऑफ द कॉमन परपेंडिकुलर पे रखते तो फिर Z1 और Z2 के दरमियान Z1 पे एक ओरिजिन आ गया तो जी फिर Z2 Z1 पे पे सर ओरिजिन आ गया. तो Z2 पे फिर ओरिजिन उसके लिए लिहाजा ड्रॉ नहीं करेंगे नहीं सेकंड नहीं सिर्फ एक. नहीं नहीं, देखिए अगर जॉइंट है ना तो देखिए उस जॉइंट के आगे कुछ ना कुछ टूल ग्रिपर कोई ना कोई चीज लगनी है. आप जॉइंट के ऊपर खत्म नहीं कर सकते ना. अगर ठीक है आपने सर. ये जॉइंट लगा दिया है तो इसका मतलब है कि यू आर एडिंग अ डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो उससे आगे आपका कोई ना कोई टूल लगना है, जैसे ये 3 से आगे लगा हुआ. ठीक है सर. अगर ये नहीं होगा तो फिर आपको एक्चुअली Z2 पे जॉइंट की जरूरत ही नहीं है. समझ गया ना ठीक मेरी? है सर. ठीक है सर. ओके. समझ गया. नाउ मैं अब उस तरफ आता हूं. ये मैंने पैरेलल वाले आपके साथ डिस्कस कर लिए. अब मैं आपके साथ ये बात करने लगा हूं कि अगर जो कोइंसाइड या इंटरसेक्ट कर रहे हो तो फिर मेरा स्टार्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ फ्रेम जो है जो ओरिजिन है वो फ्रेम क्या होगा.
So let me just draw it here. मैं आपको, so let's see, I have a revolute joint here, ठीक है, और I have another revolute joint which is here like this, ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, अगर लेट मी, अच्छा थोड़ा सा मैं इसको इस तरह बनाता हूँ ताकि और इसमें क्लैरिटी आ जाए। थोड़ा सा मैं इसको क्रिएट करता हूँ, आप थोड़ा और बेहतर समझ आए। सो यहाँ, और दूसरा जो जॉइंट है वो यहाँ से, लेट्स सी, मैंने ये कहा यूं करके, यूं जाके ऐसे और लाइक दिस, ये दूसरा जॉइंट है। अब ये दोनों रेवोल्यूट जॉइंट है। तो अब गौर से देखिएगा कि अगर मैं इसके दोनों के जो एक्सिस हैं जिस पे रोटेशन, लेट्स सी, सो ये अगर दिस इज जॉइंट 1 एंड दिस इज जॉइंट 2, तो आप देखिए ये जो 1 है इसका एक्सिस ये बनेगा, इसको मैं ऊपर एक्सटेंड कर दूं, ये एक्सिस बन जाएगा रेड वाला, ये 1 का। 2 का बनाऊं तो 2 का एक्सिस ऐसे और ऐसे बन जाएगा। तो आप देखें कि मेरे पास ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ असाइनिंग अ फ्रेम। जी, ये बात समझ आ रही है? अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको गौर से आपने देखना है कि रेवोल्यूट जॉइंट ये नीचे है 1 का, और मैं यहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर Z1 लगाने लगा हूं। ये देखिए, मैं यहां Z1 लगाने लगा इंटरसेक्शन पॉइंट पे। तो अगर दो जॉइंट्स के जो रोटेशन या उनके जो एक्सिस हैं वो अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरा ओरिजिन बन जाता है टू असाइन अ फ्रेम। तो ये I और I+1 था। देखिए, दिस इज माय 2 is my I+1 and 1 is my I। तो ये मैंने देखें जो Z1 है वो यहां असाइन किया। इसी तरह जब मैंने 2 को असाइन करना होगा तो मैं 2 से फिर आगे देखूंगा कि अगर 2 के आगे कोई और जॉइंट है तो फिर मैं उसके Z2 और Z3 को कंपेयर कर लूंगा। और लेट्स सी, बड़े गौर से मेरी बात सुनिएगा, कि इससे आगे ग्रिपर है, 2 के आगे ग्रिपर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 को ही असाइन करना है। तो मैं 2 के डायरेक्शन के ऊपर, ये जो मेरी रेड वाली ये आपको नजर आ रही थी, 2 वाली डायरेक्शन के अंदर मैं अपना Z2 भी इधर ही डिफाइन कर दूंगा, लेकिन उस Z2 की जो डायरेक्शन है वो इस Z1 के नेगेटिव के लिए। ये बात समझ आई? लेट मी जस्ट पुट द Z2 हियर, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, ये बता रहा था कि Z2 के आगे ग्रिपर है, तो मैं Z2 को, लेट्स सी, मैं Z2 यहां डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि दिस इज रोटेशन है ना इन दोनों के दरमियान, रोटेट होना है इसके ऊपर, तो इसलिए मैंने यहां पे Z2 को इधर डिफाइन कर। मैं Z2 को दूसरी तरफ भी डिफाइन कर सकता था, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाएंगे, Z1 एंड Z2, बट एट द सेम पॉइंट। ये बात समझ आती है? एनी कंफ्यूजन? जी, यस सर। जी, अच्छा, ओके, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक? यहां तक किसी के जहन में कोई क्वेश्चन, किसी स्टूडेंट के जहन में कोई क्वेश्चन? क्योंकि ये जो असाइनमेंट है फ्रेम्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आगे हमने फिर अपना ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाना होता है।
ओके, सो हमने अभी तक अपनी 3 कन्वेंशंस पढ़ ली। ओके, सो लेट मी मूव फॉरवर्ड। मैं 4th कन्वेंशन पे आ जाता हूं कि मैंने असाइन करना है एक्स एक्सिस। अभी देखिए, अभी तक मैं अपने फ्रेम का जी एक्सिस असाइन कर चुका हूं। सो अब जब मैंने एक्स एक्सिस असाइन करना है, अब मैंने अगर एक्स एक्सिस असाइन करना है तो क्या होगा? The x-axis will be assigned along the common perpendicular. एक चीज, ये किस केस में होगा? When the two z's are parallel. When the two z's are parallel. इस condition में, when the two z's are parallel, so x would be along the common perpendicular. ये बात ठीक हो गई? और अगर मैं इसको यहाँ थोड़ा सा एलेबोरेट करके बना दूँ, लेट मी जस्ट मेक इट हियर, तो मैं इसको इस तरह से बनाता हूँ कि ये मेरा, लेट्स सी, ये मेरा एक एक्सिस था जी का, ये दूसरा था, और इनके दरमियान दिस वाज अ कॉमन परपेंडिकुलर। तो ये जो मेरी डायरेक्शन है ये एक्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, सो ये एक चीज होगी। सेकंड क्या है? इफ द एक्सिस इंटरसेक्ट, अगर एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो फिर जो एक्स है, अगर z एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो देन द x विल बी द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग द टू एक्सिस। वो हम बाद में करेंगे, जिस वक्त हम ये पहले पैरेलल वाला कर लेते हैं, फिर भी गो ऑन दिस। सो मैं इसको जल्दी से दोबारा वही चीज बना दूं। हमने क्या किया था? हमने कहा था कि दिस इज प्लेनर, दिस इज अ प्रिज्मेटिक जॉइंट, दिस इज अ रेवोल्यूट जॉइंट, this is a revolute joint, this is the base. हमने इसका ये एक एक्सिस डिफाइन किया था, इसके ऊपर हमने कहा था कि दिस इज Z1, और इसके ऊपर हमने यहाँ पे फ्रेम असाइन किया था। इसी तरह यहाँ पे हमने Z2 डिफाइन किया था, और ये हमारी लाइन थी। ये हमने Z3 डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया था, और इसको हमने ऐसे बना दिया था। फिर हमने कहा था कि इनके दरमियान कॉमन परपेंडिकुलर्स हैं। वो कॉमन परपेंडिकुलर आपको याद है, हमने ग्रीन रंग से बनाए थे। सो ये हमारा कॉमन परपेंडिकुलर था जो यहाँ आ रहा था, ठीक है। यहाँ से हमारा कॉमन परपेंडिकुलर यहाँ आ रहा था, यहाँ से हमारा कॉमन परपेंडिकुलर यहाँ जा रहा था। तो ये मैं सॉरी, ये बीच में से, ये मैं यहाँ तक कॉमन परपेंडिकुलर बता। अब क्या है? ये जो कॉमन परपेंडिकुलर है, ये हमारा एक्चुअली एक्स एक्सिस होगा। ये हमारा क्या होगा? एक्स एक्सिस होगा। सो लेट मी जस्ट पुट एन एरो हियर एंड डिफाइन दिस एज x1। देखिए, ये पहला फ्रेम जो प्रिज्मेटिक जॉइंट का फ्रेम है, ये उसकी बात हो रही है। Z1 है और x1 है, ये मैंने डिफाइन कर दिया। देन सेकंड Z2 का यहां मैं एक ये लगा देता हूं और मैं बताता हूं कि दिस इज x2, और थर्ड में मैं यहां एक एरो लगा देता हूं और बताता हूं कि दिस इज x3। सो मैंने दो एक्सिस असाइन कर दिए अपने फ्रेम को, z एक्सिस एंड x एक्सिस। सो इफ आई नाउ look at here, so in fact मैंने एक x एक्सिस और एक z एक्सिस अपने फ्रेम को असाइन कर दिया। अच्छा, रोबोटिक्स के अंदर ये दो एक्सिस इनफ है डिफाइन करने के लिए, बट हम एक y एक्सिस भी डिफाइन करेंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो करते हैं। अच्छा, ये पैरेलल में हमारा आपको समझ आ गई कि ये कैसे है? यहां तक कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताइए। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं एक स्टेप फिर आगे जाने लगा हूं कि
अगर एक्सेस इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है? ओके, लेट्स सी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये एक प्लेन है जिसमें एक एक्सेस लाई करता है, ये दूसरी प्लेन है। सॉरी, मैंने इसको पूरे को नहीं बनाना चाहिए था, ठहर जाओ। दिस इज वन प्लेन जिसमें हमारा एक एक्सेस लाई करता है, दिस इज सेकंड प्लेन जिसमें हमारा सेकंड एक्सेस लाई करता है, और ये इनका इंटरसेक्शन है। सो इफ दिस इज द इंटरसेक्शन, तो हमारा जो एक्स है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन जो कि इंटरसेक्ट होगी। ठीक है, अब मैं आपको वही जो मैंने पहले एग्जांपल बनाई थी उसी के साथ आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। क्या था जी? वी हैड वन जॉइंट हियर and we had one joint here, ऐसे, और इन दोनों के दरमियान एक ये रिलेशनशिप। सो लेट्स सी कि अगर मैं, अच्छा आपको याद है कि हमने इनका जो z बनाया था वो कहाँ बनाया था? लेट मी जस्ट ड्रॉ द z, कि हमने इनका एक कॉमन ऐसे ये बनाया था, एक ये बनाया था, और यहाँ से हमने कहा था कि दिस इज z1। अच्छा अब देखिए, इसकी प्लेन ये है और इसकी प्लेन ये। अब ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो हमारा x1 है दिस विल बी लाइक दिस। जी अब मुझे बताइए, ये वाली बात समझ आई है कि ये दोनों प्लेन्स, जैसे मैंने ये ग्रीन वाली बनाई, ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे को, जो एक्सिस की प्लेन्स हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो जहां पे मेरे ये एक्सिस की प्लेन इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो मेरा एक्स एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर होगा या नॉर्मल कह लें, सो वो मेरा एक्स एक्सिस है। सो आई एम असाइनिंग दीज फ्रेम्स टू पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग एक्सिस, जी एक्सिस। जी यहां तक ठीक है? जी Yes, यहां sir. तक ठीक है? मुझे काइंडली कुछ रिस्पॉन्स चाहिए आपसे। Yes, sir. Okay, anybody getting bored? Please be frank No, and let sir. me know if somebody is getting bored. All right, so that's good. It means that you are concentrating more onto this and trying to learn. So, for a teacher, as a teacher, this would be a very satisfactory feeling for me that whatever I am trying to make you people understand, you are understanding it very well. So this is a sigh of relief for me, and a very satisfactory uh, feeling that whatever I'm trying to convey to you, you are learning it fast and you are learning it with your सर full. ब्रेक कर ब्रेक कर लें? ओके, सो हम इस तरह करते हैं कि let's not call it a break. Let me just engage you, some of you, into this and ask you. सिर्फ आप बिल्कुल keep yourself relaxed and just answer a few questions और discussion हम कर सकते हैं। हम इसको जरा रिपीट पे चले जाते हैं एंड वी से कि क्या ये किसी भी दो पैरेलल जीज जो हैं इनके दरमियान कोई यूनिक परपेंडिकुलर होगा, कॉमन परपेंडिकुलर यूनिक होगा, कोई भी z1 and z2 if they are parallel to each other? No, sir. No. Very good. So how many
common perpendicular we can have between two parallel lines? Infinite. Infinite. Very good, शाबाश. अब दूसरे पे आ जाएं. तो ये देखें, ये मेरे दो हाथ थे, ये दोनों पैरेलल थे, तो आई कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जो कि कॉमन परपेंडिकुलर है. मैं करने क्या लगाऊं, थोड़ा सा मैं आपको ना, इनफैक्ट ये जो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, ये हमने आगे पढ़नी है. सो आपको ब्रेक के चक्कर में मैं फिर भी पढ़ाई जा रहा हूँ. सो जरा गौर से देखिएगा मैं क्या करने लगा. आई एम गोइंग टू रोटेट माई राइट हैंड लाइक दिस. लेफ्ट मेरा वहीं पे खड़ा है. सो अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे दिखाऊं, सो ये मैं इस तरह हूँ. ठीक है, ये बात समझ आती है कि मैंने अपना राइट हैंड रोटेट करके इस तरह लिया और मैं दोबारा अपनी जगह पे आ गया ऐसे. अब मुझे बताइए कि विल आई हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉमन परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस? नो सर, एक यूनिक होगा. Oh, very good. Now we will have only one unique common perpendicular to these lines. Very good. शाबाश. तो ठीक है, इसका मतलब है कि you people are understanding it well. Very good. So let us move forward. थोड़ी सी हमने रिलैक्स हो गया, मैं भी कुर्सी से एक दफा उठ के दोबारा बैठ गया हूँ. So my muscles are now again relaxed. So we move forward and we are going to talk about what? Assign the y-axis to the complete coordinate system. ठीक है, we know the left hand rule जो आपके ये मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है. We know the left hand rule. Here you can see the left hand rule. So with the help of this left hand rule, I can assign y-axis to complete the coordinate system. So हम इसको ना भी करें तो दो के साथ हमारा जो है टू एक्सेस के साथ वी आर गुड. सो लेट मी जस्ट फाइनलाइज अगेन. इसको मैं फिर वही दोबारा ड्रॉ करने लगा हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों को एक दफ़ा फिर ये हो जाए. सो दिस इज प्लेनर, दिस इज रेवोल्यूट, दिस इज रेवोल्यूट. वी स्टार्टेड ऑफ विद दिस, फिर वी सेड कि ये दूसरी लाइन है एक्सिस की, फिर हमने कहा ये तीसरी लाइन है एक्सिस की, फिर वी गेव इट अ डायरेक्शन एंड मीन, वी गेव इट अ डायरेक्शन एंड मीन, देन वी असाइंड द पॉइंट वेयर वी असाइंड आवर ओरिजिन. सो हमने ये करके ये लगाया था. देन वी केम टू द सेकंड, उसको भी हमने इसी तरह कर दिया. देन वी केम टू द थर्ड और इसको भी हमने इस तरह कर दिया. देन हमने कहा कि वी नीड टू फाइंड आउट अ कॉमन परपेंडिकुलर इन बिटवीन दीज टू, और वो भी हमने फिर ग्रीन के साथ ऐसे किया, फिर यहाँ से ऐसे किया एंड देन लाइक दिस. फिर हमने इसको x1 का नाम दिया, इसको हमने x2 का नाम दिया और इसको हमने x3 का नाम दिया. मेरा ख्याल है वी हैव ओके, मेरा ख्याल है हम लोग कंप्लीट इसके ऊपर कर. और सॉरी, एक हमारी बेस थी जो कि हम मिस कर दी. हमने एक बेस का नाम दिया था इसको. ओके, सो वी आर नाउ अगेन ऑन द ट्रैक कि हमारे पास तमाम हो गया. अच्छा, अब इसमें हमें याद है, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो एक्सिस हों तो उसके साथ भी हम अपना काम चला सकते हैं, हमें y की ज़रूरत नहीं है. बट अगर इफ़ यू वांट टू असाइन y टू योर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स तो ये आप देख के लेफ्ट हैंड रूल को देख के आप इससे अपने y को असाइन कर सकते हैं. नाउ कम टू द सिक्स्थ पार्ट. Assign a frame 0 to match 1 when the first joint variable is 0. ये जो मैंने कहा था ना बेस है, जो लिंक है उसके एक साइड के ऊपर भी जॉइंट है, दूसरे साइड के ऊपर भी जॉइंट है. ये बात मैंने आपसे पहले की थी. वो दोनों जॉइंट मूविंग भी हो सकते हैं. मैंने कहा था कि दिस इज अ लिंक, इसके एक साइड पे एक जॉइंट है, एक साइड पे एक जॉइंट है, दोनों मूविंग हो सकते हैं, बट एक स्टेशनरी हो सकता है. सो लेट्स सी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बेस है आपकी,
बेस जो है that would always be stationary. So we will assign a frame 0 to the base. So let us assign a frame 0, which is this is z0 and x0, which is assigned to the base. So अगर मैं इसके साथ y भी assign करना चाहूँ तो I can assign y0 here, और इसलिए सबके साथ में अगर y assign करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ. Why did I do this? Because मुझे अपने फ्रेम z1 के पैरामीटर्स को जानने के लिए एक i-1 फ्रेम चाहिए. I repeat, मुझे अपने z1 फ्रेम के पैरामीटर्स, लिंक के पैरामीटर्स जानने के लिए एक फ्रेम 0 चाहिए. और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये जो x1, x2, x3 है, आई रिपीट, ये जो x1, x2, x3 हमने एक्सेस बनाए हैं, ये एक्चुअली लिंक लेंथ है. Link length is taken in the direction of x1, which is common perpendicular between the two axes, two z axes. मैं repeat कर रहा हूं. The link length is taken in x direction, which is a common perpendicular between the two z axes. ये बात समझ में आ गई? ओके. अगर आपको ये बात भी समझ में आ गई है, सो अब मैं तसल्ली मुझे ये हो गई है कि now when I take you towards the next step of assigning link parameters and link variables, so आपको ये बात बहुत बेहतर तौर पे समझ आएगी. So I am moving forward and I have now assigned all my frames to a particular joint, जो कि हमने कहा था कि 6 convention है to assigning frames to a robot manipulator. So ये काम हम यहाँ तक वो 6 steps हम कर चुके हैं. Okay, let's move forward. अब मैं आपको एक लिंक की डिस्क्रिप्शन देने लगा. अभी तक मैंने सिर्फ लिंक का नाम लिया था, थोड़ा सा मैंने आपको लिंक के बारे में बताया भी था. अब मैं आपके सामने यहाँ पे वही लिंक. अब अच्छा, पहले आप कैमरे को ना देखें. लुक एट दिस. सबसे पहली तो बात ये है कि ये वो एक्सेस है, एक्सेस जो हमने डिफाइन किए हैं जॉइंट्स के. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस i एंड i-1. तो इसका मतलब है कि ये एडजेसेंट. ये बात क्लियर है? ओके. ये वो कॉमन परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये वाला, दिस इज द कॉमन परपेंडिकुलर जो कि एक्सेस i-1 और एक्सेस i के दरमियान है. ये देखें, आपको ये कॉमन परपेंडिकुलर नजर आ रहा है. सो अगर ये मेरी z की डायरेक्शन होगी, इफ दिस इज zi, दिस इज zi-1, तो ये डायरेक्शन मेरी क्या होगी, ये वाली जी. ये डायरेक्शन क्या होगी? x कौन सा सर? ये xi-1 होगा. xi-1. जबरदस्त. सो दिस इज xi-1. और देखिए इससे आगे, इसके आगे जिस तरफ भी अगला जॉइंट होगा उस डायरेक्शन में, लेट्स सी अगर वो इस डायरेक्शन में है तो इसका xi इधर चला जाएगा. ये मैं ऐसी एज्यूम कर रहा हूं कि अगला इस तरफ है. अभी मैं उसको देखूंगा नहीं, मैं आई एम जस्ट डिफाइनिंग द लिंक. सो लिंक जो है वो दो चीजों से डिफाइन होता है. वन इज लिंक लेंथ, जो कि ये आपको ए की फॉर्म में नजर आ रही है. लेट मी जस्ट टेक दिस. सो आपको ये लिंक लेंथ नजर आ रही है ए की फॉर्म में इन द डायरेक्शन xi-1.
और दूसरा लिंक कैसे डिफाइन होता है अगर लिंक के बीच में ट्विस्ट है। आपको याद है मैंने अभी ये दो पैरेलल लिए थे, अगर ये दोनों पैरेलल हों तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि इन दोनों के लिंक के बीच में कोई ट्विस्ट नहीं है। बट अगर एक को मैं टेढ़ा कर देता हूं, मैंने राइट हैंड को टेढ़ा किया था ऐसे, जो कि यहां आपको नजर आ रहा है, इस पर्टिकुलर केस में अगर आप अब डायग्राम की तरफ देखें, डोंट लुक एट माय हैंड, जस्ट लुक इन द डायग्राम, सो आपको नजर आता है कि जो आई माइ लिंक आई माइनस वन सॉरी एक्सिस आई माइनस वन और एक्सिस आई जो हैं ये दोनों पैरेलल नहीं हैं, सो इनके दरमियान देयर इज एन एंगल, सो दे विल हैव अ यूनिक कॉमन परपेंडिकुलर, और ये जो एंगल है इन दोनों के दरमियान, दिस इज कॉल्ड लिंक ट्विस्ट एंड दिस इज गिवन बाय अल्फा. So this is link length which is given in terms of A, and this is link twist which is given in terms of alpha. So ये मैंने लिंक को डिस्क्राइब किया है आपके लिए. ये वाली बात समझ आती है कि ये लिंक को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया, एक लिंक की लेंथ और एक लिंक का ट्विस्ट. ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम इकट्ठी करके जब एक जगह लेके जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि ये सारी वैल्यूज विल हेल्प अस इन फॉर्मुलेटिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स. आई रिपीट, ये जो मैं पैरामीटर्स यहां लिंक को डिस्क्राइब कर रहा हूं, जिसमें एक लिंक लेंथ ए है एंड देन देयर इज अ लिंक ट्विस्ट अल्फा, ये सारे पैरामीटर्स हम विल हेल्प अस in defining the transformation matrix between these two joints, between these two frames. अभी देखें हमने frames की बात की थी, हम ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स B to A की बात करते थे. अब ये देखें ये ZI या जॉइंट I या फ्रेम I से फ्रेम I माइनस वन, ठीक है. हमने थोड़ा सा अपने आप को अब उन फ्रेम्स को जो हमने अलग अलग लगाए हुए थे पहले, अब हम उनको इकट्ठा करने लगे हैं ऑन टू अ मैनिपुलेटर, और अब हम वो अपना लेके आने लगे हैं सामने कि किस तरह से हमने इन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस को बनाना है, किस तरह इन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस. सो दिस इज द लिंक डिस्क्रिप्शन. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब मैं लिंक के कनेक्शन की बात करने लगा, अब मैं लिंक के कनेक्शन की बात करने लगा. पहले मैंने सिर्फ लिंक को डिफाइन किया था, अब मैंने एक लिंक के दूसरे लिंक के साथ जो कनेक्शन है उसमें वी विल हैव टू मोर पैरामीटर्स which will be known as link offset and joint angle. अच्छा देखें, ये हम डिफाइन कर चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये हम डिफाइन कर चुके हैं, इसको मैं रिपीट नहीं करूंगा. मैं यहाँ पे क्या चीज नई डिफाइन करने लगा हूं, दैट इज द लिंक ऑफसेट है. पहले ऑफसेट क्या है ये देखिए, ये एक्सिस आई से जो मैंने आपको याद है मैंने बताया था कि एक लिंक आगे जा रहा है, सो दिस इज द लिंक विच इज गोइंग अहेड. आई रिपीट, so this is the link which is going ahead. It means that we either we have some gripper here or maybe we have another joint here. हम we are not interested कि आगे क्या है, but हमें ये पता है कि इससे आगे एक और चीज जा रही है. So now आप ये देखें कि what is the offset between the previous link which is link I minus 1 and link I. So ये देखें, ये I minus 1 की ये प्लेन है, ये प्लेन I minus 1 की है, जिसके अंदर आपको एक्चुअली ये दिस इज I minus 1 प्लेन, ये अगर मैं इस तरह बना दूं, ठीक है. और ये देखें कि जो A1 है ये इससे ऊपर है और ये इधर को जा रहा है. सो दिस इज एन ऑफसेट बिटवीन लिंक, ये जो I का लिंक है और ये XI के दरमियान. सो दिस इज द ऑफसेट एंड दिस इज कॉल्ड D. ये लिंक का ऑफसेट है, एक चीज. देन देयर इज अ रोटेशन.
there is a rotation between link I minus 1 and link I. There is a rotation between link I minus 1 and link I. So एक तो ये देखें, ये I minus 1 और इसके दरमियान एक ये D है, अगर मैं यहाँ पे, लेकिन चूंकि ये लाइंस यहाँ पैरेलल बनती हैं तो D ऐसे मैयर किया जाता है, but this is the offset and then there is a rotation between these two, I और I minus 1 के दरमियान, which is given by joint angle theta. So these are the two link connection description. एक मैंने link को describe किया with the help of length, link length and link twist. Second, मैंने define किया एक link को दूसरे link के साथ with the help of the offset between these two links and the rotation between these two links. यहां पे कोई क्वेश्चन, ये बात समझ आई या नहीं आई? सर ये जो दो लिंक्स एक दूसरे के ऊपर है, इनकी हम बात कर रहे हैं? जी, इनकी बात कर रहा हूं। ये जो दो लिंक्स देखें, ये दिस इज लिंक I minus 1, ये देखिए दिस इज लिंक I minus 1, ये दिस इज लिंक I minus 1, ये यहां तक आ रहा है, ये इस जगह तक आ रहा है, दिस इज पार्ट ऑफ लिंक I minus 1, ठीक है। और ये जो है ग्रीन में बना देता हूं लिंक I, दिस इज लिंक I जो कि I minus 1 से आगे है, तो इन दोनों के दरमियान देयर इज एन ऑफसेट विच इज गिवन बाय DI and then there is a rotation between these two which is given by theta. ठीक है, ये बात समझ आती है? जी सर। ओके सर एक दफा अल्फा को कर दें एक्सप्लेन। अल्फा क्या था? अल्फा इज लिंक ट्विस्ट। मैं वापस जाता हूं, मैं यहां चला जाता हूं इससे पिछली स्लाइड पे, कि जो मैंने कहा था, ये देखिए दोबारा, ये एक लिंक है, इसके एक इधर जॉइंट है, एक इधर जॉइंट है, इन दोनों जॉइंट्स के दरमियान से एक्सिस गुजर रहे हैं Z1, इन दोनों के दरमियान से एक्सिस गुजर रहे हैं। मैं ये लिंक नीचे रखने लगा हूं और एक्सिस को अपने बाजुओं से बनाने लगा। सो ये दो एक्सिस इनके दरमियान है, जो दो जॉइंट्स में एक लिंक है। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर तो देयर इज नो ट्विस्ट, लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है, ऐसे है, सो देन देयर इज अ लिंक ट्विस्ट बिटवीन दिस, और वो लिंक ट्विस्ट जो है वो मैं इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो अल्फा है, जिसको कि मैं लिंक ट्विस्ट कहता हूं। ठीक सर, ठीक। ओके, सो लिंक लेंथ, लिंक ट्विस्ट, लिंक ऑफसेट एंड जॉइंट एंगल, तो ये चार चीजें हैं जिनकी मदद से मैं ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाऊंगा। मैं इन चीज़ों को आपके सामने यहाँ दो चीज़ें रखने लगा हूँ जो आपके बुक में आपने ये पढ़ना है। अच्छा, आपने जाके ना किताब में, ये चैप्टर नंबर 3 है आपका, कोशिश करें कि इसको गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा पढ़ लें किताब में, तो कुछ ये चीज़ें मैंने जितनी आपके साथ यहाँ बोली हैं वो आपको रिफ्रेश हो जाएगी। और ये जो दो इसके टॉपिक्स हैं, intermediate link in the chain and first and last link in the chain, इनको भी जरा, ये 5-5 लाइनें, 6-6 लाइनें हैं टोटल आपकी किताब में। दिस इज ऑन पेज नंबर 76 एंड 74, ठीक है। इनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से ये वहां पे वो बुक में क्या दिखा रहा है कि वो लिंक जो इन बिटवीन है, जिसके आगे भी लिंक है और जिसके पीछे भी लिंक है, उसको मैंने कैसे विजुअलाइज करना है। चीजें यही हैं जो मैंने आपको बताई है, विजुअलाइज कैसे करना है। देन वो लिंक जो पहला है और इसके आगे बाकी के लिंक है, एंड देन एक लास्ट लिंक है जिसके पीछे सारे लिंक है, उनको मैंने कैसे डिफाइन करना है। जब आप वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो यू विल कम अप विद दिस। कि उन लिंक पैरामीटर्स को मैंने यहां पे आपके सामने लिख दिया है। सो लेट अस
सी, सबसे पहले देखें कि ये एक लिंक है, जो लिंक i-1 है। इसके अंदर आप देखें मैंने i-1 के साथ zi-1 अटैच कर दिया, xi-1 अटैच कर दिया और yi-1 अटैच कर दिया। ठीक है। सिमिलरली ये दूसरा है जिसमें मैंने x1 यानी कि जो अगला लिंक है विच इज लिंक i, तो मैंने xi, zi और yi इसके साथ अटैच कर दिया। दिस इज लिंक i, इन दोनों के दरमियान एक ऑफसेट है d1, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों के दरमियान एक एंगल है थीटा, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि लिंक की डिस्क्रिप्शन थी, कनेक्शन की डिस्क्रिप्शन, और एक लिंक की अपनी डिस्क्रिप्शन जो थी वो लिंक की लेंथ थी और लिंक का ट्विस्ट था। सो ये चार चीजें विच इज लिंक ट्विस्ट, सॉरी लिंक लेंथ, इसके साथ लिखता हूं, दिस इज लिंक length, this is link twist, this is link offset, and this is link rotation थी, क्या कह रहे थे हम इसको, link joint angle, and this is joint angle। सो ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं इसमें 3 डिस्क्रिप्शन लिंक्स की हैं और एक जॉइंट की। अब इसको गौर से देखना है हम। लेट्स सी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिंक लेंथ AI, any arbitrary ith axis. So this will be a distance from Z1 to Zi plus 1 measured along x1, common perpendicular। ये x1 क्या था, x1 was the common perpendicular direction between the two z's, और उसके ऊपर जो डायरेक्शन थी वो लिंक लेंथ, उस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो लिंक लेंथ के बराबर है। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट लिंक लेंथ। ये जो कन्वेंशन मैंने आपको यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, जिसके साथ मैंने ये लिंक लेंथ, लिंक ट्विस्ट, लिंक ऑफसेट एंड जॉइंट एंगल लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप इट विद यू, get a photocopy of it, keep it with you in your pocket, so whenever you see a link manipulator, take it out और उसके साथ लिंक करें। कोई क्वेश्चन करने लगे हैं, इसका फोटोकॉपी अपने साथ रखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि AI link length is the distance between the two z's, z1 zi to zi plus 1 और measured along xi, then आ जाए अल्फा i। ये उसी लिंक लेंथ का, उसी लिंक का ऑफसेट है, अब सॉरी ट्विस्ट है, जो दोनों जीज के दरमियान एंगल से मुझे मिलता है। और इसमें देखें कि z1 और z2 दे आर रोटेटिंग अबाउट xi। लेट अस सी हियर, ये देखिए अल्फा i माइनस 1। अच्छा, ये चूंकि अब i माइनस 1 की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि ये भी z i माइनस 1 और zi के दरमियान आ जाएगा। ठीक है, सो देखें, दिस इज zi माइनस 1 एंड दिस इज zi। ठीक है, तो ये देखिए, zi का ये एक्सिस है which is parallel to this, so ये इसका मतलब है कि ये zi का ये एक्सिस है और ये zi माइनस 1 का एक्सिस है।
ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे अभी अल्फा आई माइनस वन की बात करने लगा, अल्फा आई माइनस वन की बात करने लगा, एंड this will be between, this will be the angle alpha I minus y, I will be the angle between z I minus 1 z I minus 1 I minus 1 z I minus 1 and z 1, ये दो, ठीक है, एंड इट इज टू बी मेजर्ड अबाउट एक्स आई माइनस वन, इसके अबाउट, राइट। तो अब आप देखें, मुझे जी आई माइनस वन से जी आई की तरफ जाना है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो मैं अपनी उंगलियों को इसकी तरफ कर्ल कर लूंगा, तो मेरा जो एक्स आई माइनस वन की डायरेक्शन में ये चला जाएगा, ठीक है। सो मैं ये जो अल्फा आई माइनस वन ले रहा हूं, दिस इज आई एम कर्लिंग between zi minus 1 to zi while my thumb is pointing in the x I minus 1 direction. This is the link twist. अगर x I minus 1 की डायरेक्शन दूसरी तरफ होती, जिसमें अभी इसके ऑपोजिट होती, तो मेरा ये अल्फा I minus 1 जो है ये नेगेटिव साइन के साथ आ जाना था। Do you understand this? वेरी गुड। सो अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है जिसका, आई एज्यूम दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ डी आई, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स आई माइनस वन एंड एक्स आई इन द डायरेक्शन ऑफ जी आई। ये देखिए, दिस इज एक्स माइनस वन, एक्स आई माइनस वन, और चूंकि ये रोटेट हो गया तो इसको मैं इसके यहां पे ले आता हूं, तो ये उसी प्लेन में है। सो डिस्टेंस इज, ऑफसेट इज नॉट चेंजिंग एक्चुअली। तो इनके दरमियान जो ऑफसेट है वो एक्स आई माइनस वन और एक्स आई, ये इनके दरमियान ऑफसेट इज डी वन या डी आई। इसी तरह जो थीटा वन है वो किसके दरमियान फर्क एंगल है, एक्स आई माइनस वन, और ये एक्स आई को अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करूं तो ये मेरे पास एक्स आई आ जाता है, जिनके दरमियान एंगल इज थीटा वन। ठीक हो गया। तो ये चार पैरामीटर्स विच इज लिंक लेंथ, लिंक ट्विस्ट, लिंक ऑफसेट एंड जॉइंट एंगल, ये चार पैरामीटर्स आपने अपने जहन में रखनी है, एंड हाउ दीज आर मेजर्ड। इंशाल्लाह कल हम इसकी मदद से एक डेनेविट एंड हार्टनबर्ग, जिसको कि DH टेबल कहते हैं, वो हम बनाएंगे। DH टेबल हम बनाएंगे इस कन्वेंशन को देखते हुए, ये जो हमने यहाँ लिखी हुई है, और उस डेनेविट एंड हार्टनबर्ग का जो DH टेबल जिसको हम कहते हैं, उस DH टेबल से हम we are going to formulate our transformation matrix, which will be made through these all link parameters. So I would request you people all to please go back home, see this recording again, link it with your book. थोड़ा सा आपको आज 1 घंटा शाम में लगाएं इसके साथ, 1 से 1.5 घंटा, ताकि कल के लिए यू आर रेडी कि यार DH टेबल जब मैं बनाऊंगा तो उससे मैंने आगे कैसे चलना। ठीक है जी। सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जो आपको समझ ना आया हो, सो आई एम अवेलेबल टू आंसर। Okay, if there is no question, so let me just switch the recording off.